Good evening everyone, welcome to the class. Please let me know if I am audible and visible so that we can resume our class. Hi everyone, welcome to Unacademy Plus. Welcome to Prehistory Period Paleolithic to Chalcolithic Culture. We are going to start the class on the crash course on ancient Indian history. Good evening everyone. So I am your educator Arpita Sharma. I have been taking the history batches since 2018. So it's been 3 years, right? Roughly 3 years that I am taking the ancient Indian history, the medieval Indian history, the modern Indian history classes. So I have some niche over there in the history courses. So this is, I guess, 100 plus courses I have so far taken on history, right? 100 plus classes मैंने history पर अभी तक लिए हुई हैं. I have forgotten the number of classes that I have taken on ancient Indian history. So we are going to start with this class. This is a crash course and this is lesson number 2. The first lesson was an introductory lesson where we understood what in ancient Indian history is UPSC targeting. And in the second lecture we are going to start with the prehistory phase. Then we are going to jump on Harappan civilization, then Vedic age, Mahajanpad, Mauryan empire. Then we are going to study the Gupta empire, the Harsha empire, the Pala kingdom, etc. So these are the topics that we are going to cover in this crash course on ancient Indian history. Now remember, this is the crash course. That means we are going to cover ancient Indian history not from the perspective of history optional. We are going to cover ancient Indian history from the perspective of GS paper 1 and prelims. Okay, we are going to restrict ourselves towards these two parts of the exam. This class is not history optional class. It's a class for GS paper 1 and prelims where we are going to study ancient Indian history. Okay, and the class will be in English language. Okay, this is the English batch that we are taking. So the class will be in English language. I will be using Hindi but in very small proportion. Okay, so I hope I have made my point and myself clear. Okay, now if you have any problem before we start the session, please let me know so that we can resume our session without any delay. अगर किसी को कोई भी issue है आप फटाफट से पूछ लीजिए comment section में, फिर हम start करते हैं. दिनेश is saying no issues. Okay, ठीक है, कोई issues नहीं है. Everybody else having any issue? ठीक है. Now before we start the session, एक छोटी सी announcement है आप लोगों के लिए. Before we start this class, here's a small announcement for all of you. So now this is a small announcement for all of you. Unacademy has launched Unacademy Combat, which is the most competitive gamified UPSC CSE battle, which is going to take place on 17th of Jan 2021 at 11 am. Okay, I have also pinned up the link to this battle in the comment section and this battle is free of cost. ये जो battle है ये free of cost है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर आप देखेंगे that is in this battle you will be having 60 questions and 13 challenges will be there, 45 minutes each, and in this battle you are going to get your all India rank as well. आपको इस battle में ना आपकी all India rank भी मिलेगी. So if you score rank between 1 to 3, right, from 1 to 3, then you will be getting Unacademy Plus subscription for 3 months for free of cost. आपको extend किया जाएगा. ठीक है. And second, if you are going to score between rank 4 to rank 150, then you are going to get Amazon voucher worth ₹1000. Okay, so in both cases अगर आपकी rank 1 से rank 150 के बीच में rank आती है, in both the cases there is a win-win situation for all of you. Okay, and you can use the code ARPITA10 to unlock the Unacademy Plus experience for free of cost. ठीक है, तो अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है प्लस का, अगर आप उसको जो अनअकैडमी के मॉक टेस्ट हैं, जो स्पेशल क्लासेस हैं या जो कॉम्बैट है, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक कर सकते हो अगर आप ये कोड यूज़ करते हो अर्पिता10. ठीक है, तो मैंने लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, आप उस पर क्लिक कीजिए और अनअकैडमीज कॉम्बैट पर आप इनरोल कर लीजिए बिकॉज इट्स गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 17th of Jan 2021 in the morning at 11 am. Okay, so participate in this battle. It's prelims oriented. ये prelims oriented है and you will be getting detailed solutions after every question. हर question को solve करने के बाद आपको उसका video solution भी मिलेगा. ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छी opportunity है. It's a very good opportunity for all of you. Okay, चलो let's start the session. Session शुरू करते हैं. So now prehistory. We are talking about prehistory. When we talk about prehistory, it's that part
ठीक है, ये वो पार्ट है आपके हिस्ट्री का जब रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे, व्हेन देयर वर नो रिटन रिकॉर्ड्स, दैट इट्स दैट पार्ट ऑफ योर हिस्ट्री. ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड हिस्ट्री, जब हम बात करते हैं हिस्ट्री वर्ड के बारे में, राइट, ओवर हियर व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड हिस्ट्री, इट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड. ठीक है, दिस हिस्ट्री वर्ड कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स हिस्टोरिया, जिसका मतलब होता है हिस्टोरिया. ओके, एंड हिस्टोरिया मीन्स इंक्वायरी. हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है? इंक्वायरी, और यू कैन से हिस्टोरिया ऑल्सो मीन्स नॉलेज. ठीक है, विच इज एक्वायर्ड बाय this knowledge which is acquired by investigation. Point clear? So history has been taken from the Greek word called historia, which means inquiry, or which means knowledge which is acquired by investigation. Okay, and when we study history, it corresponds to the study of past and throws light on various past events. When we talk about history, it throws lights over various past events, various human experiences, various significant events that took place in the history, that took place in the past. Okay, now history is divided into different parts. We are going to study the prehistory today. हिस्ट्री वैसे तो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, बट आज हम शुरू करने वाले हैं प्री हिस्ट्री से. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्री हिस्ट्री. ओके, नाउ प्री हिस्ट्री इज दैट पार्ट ऑफ हिस्ट्री वेयर देर आर नो रिटन रिकॉर्ड्स, जहाँ पर आपको लिटरेचर नहीं मिलेगा, वेयर यू विल नॉट फाइंड लिटरेचर, एनी सॉर्ट ऑफ लिटरेचर. वी हैव पेंटिंग्स, वी हैव टूल्स, वी हैव मेटल्स, बट वी डू नॉट हैव रिटन रिकॉर्ड्स. हमारे पास कुछ लिखा हुआ, कुछ ऐसे लिखित में बुक्स नहीं है. ठीक है, इट इज़ दैट पार्ट. फॉर एग्जाम्पल द पेलियोलिथिक पीरियड, व्हेन वी वर द फूड गैदरर्स, जब हम केव्स में रहा करते थे फूड गैदरर्स से, वी हैव द ड्राइंग्स drawn on the caves, but we do not have the written records, we do not have books which were written. ठीक है, बुक्स नहीं है हमारे पास. तो हिस्ट्री की अगर हम बात करें, इन हिस्ट्री वी हैव प्रोमिनेंटली द स्टोन एज वेयर द एविडेंसेज आर फाउंड. स्टोन एज है हमारे पास हिस्ट्री में जहाँ पर एविडेंसेस मिले हैं. ठीक है, नाउ स्टोन एज इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ये जो स्टोन एज है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. As I have told you in the last class also, do make sure that you are making notes with me in the class. Okay, so now when we talk about the stone age, it is divided into different parts. ठीक है, फर्स्ट आपका आ जाता है ओल्ड स्टोन एज. ठीक है, नाउ सेकेंड आपका आ जाता है लेट स्टोन एज. ओके, देन थर्ड वी हैव द न्यू स्टोन एज. थर्ड आता है आपका न्यू स्टोन एज. So we have old stone age, we have late stone age and we have new stone age. Okay, अब ये जो old stone age है ना, this old stone age it is known as paleolithic age. ठीक है, इसको हम बोलते हैं paleolithic age. The late stone age is known as the mesolithic age. ठीक है, and the new stone age is known as the neolithic age. This is very very important. ये काफ़ी important है. So old stone age is divided into it is known as paleolithic age, late stone age, mesolithic age, new stone age, neolithic age. Now the question comes, ma'am, do we have to remember the year also? For history optional students, yes, you have to remember the year. ठीक है, but if you do not have history optional, then year आपको ancient Indian history में year नहीं याद रखना है. ठीक है, in ancient Indian history there is no need to remember the years for GS paper 1 and prelims. ancient Indian history, yes, in modern Indian history you have to remember the years. modern Indian history में तो आपको year याद रखना है. ठीक है, but ancient Indian history में ईयर याद रखना ज़रूरी नहीं है, याद नहीं रखना. आपको आर्ट एंड कल्चर पे फोकस करना है. यू हैव टू फोकस ऑन फीचर्स इन आर्ट एंड कल्चर, नॉट द ईयर्स इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. ओके, एंड द टाइम ऑल्सो वेरीज. जो इसका प्रॉपर टाइम है इन एजेस का वो फिक्स नहीं है, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिसर्चर्स एंड हिस्टोरियंस. Okay, now coming on to the first important age that we are going to study, that is known as Paleolithic age, जिसको हम बोलते हैं Paleolithic age. Now there is another name which is given to this age, which is known as the period of hunters and food gatherers. ये जो age है इसको एक और नाम दिया गया है, वो है period of hunters and food gatherers. Okay, so Paleolithic age जो है आपका, it is the earliest, write it down, that it is the earliest period of स्टोन एज. दैट इज वाई इट इज नोन एज ओल्ड स्टोन एज, इसलिए इसको हम ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं. ठीक है, एंड इट डेवलप्ड इन, राइट इट डाउन, दिस पीरियड और दिस एज डेवलप्ड इन द आइस एज. आइस एज आपने मूवी भी देखी होगी, यू मस्ट हैव सीन द मूवी ऑफ आइस एज, राइट. तो आइस एज के टाइम पीरियड में ये एज, पेलियोलिथिक एज, डेवलप हुआ था.
पॉइंट क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक? Now with the name only you can understand Paleolithic age is known as the age of the period of hunters and food gatherers. That means here we were not as civilized as we were in Neolithic age. We were just learning how to hunt and how to eat. हम बस सीख रहे थे. We were just learning कि अपना खाना ढूंढना कैसा है, how to find the food and how to consume it. Just we were learning that much. The mind was not grown to the next level. हमारा mind next level पे grow नहीं हुआ था. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई पॉइंट. नाउ दिस Paleolithic age developed in Ice Age. So it is said that it was spread. You can write it down. It was spread in particularly all parts of India. Basically भारत के हर पार्ट में डेवलप हुआ था, इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट, द कंडीशन इज एक्सेप्ट द alluvial plains of Indus and Ganga. यानी कि Indus river and near the Indus river and near the Ganga river it was not established. It was spread in all parts of India except leaving behind the alluvial plains of Indus and Ganga. ठीक है, that means the people were not very developed that they could reach out to the Indus river plains or the Ganga river plains. लोग इतने developed नहीं थे. Whatever they were hunting, they were eating. They were not into agricultural activities. That is why they were not settling near the riverine areas. रिवर के आसपास के एरियाज में सेटल नहीं हो रहे थे क्योंकि उनको एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई नॉलेज ही नहीं थी. जो जानवर मिलता था हंट करते थे, खाते थे. जो फ्रूट्स मिल रहे हैं तोड़ रहे हैं, खा रहे हैं. वट एवर फ्रूट्स दे आर सीइंग दे आर ईटिंग देम. वट एवर एनिमल्स दे आर सीइंग दे आर हंटिंग देम, दे आर किलिंग देम. ठीक है, एंड ईटिंग देम, कंज्यूमिंग देम. दे डिडंट नो एनीथिंग अबाउट एग्रीकल्चर, सो दे वर नॉट सेटलिंग डाउन नियर द इंडस रिवर और द गंगा रिवर. Point is clear? So one more important point for Paleolithic period is that the men of this period, ठीक है, they belonged to the Negrito race. जो आदमी हुआ करते थे इस पीरियड के वो Negrito race को belong करते थे. So people belong to the Negrito race over here. ठीक है, that means they had short height, they were blackish, skin color was blackish and they had curled hair, round nose, right? उस टाइप का फीचर हुआ करता था. Okay, so those kind of people were there in the Paleolithic period. Now they used to live in caves. कहाँ रहा करते थे? Caves में रहा करते थे. That is why we have the cave paintings. They used to live in rock shelters. Rock shelters में भी रहा करते थे. And they were food gathering people. They were hunters and they were food gathering people. And also one more point, they had no knowledge. They had zero knowledge. They had no knowledge ऑफ एग्रीकल्चर की इनको खेती बाड़ी की कोई नॉलेज नहीं थी. दे हैड जीरो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर. दे हैड नो नॉलेज ऑफ पॉटरी ऑल्सो. पॉट मेकिंग जो होता है ना उसकी भी कोई नॉलेज नहीं थी. बट इन द लेटर स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ दे डेवलप्ड द नॉलेज ऑफ फायर. लाइफ के लेटर स्टेजेस में पेलियोलिथिक जो लोग थे उनको फायर की नॉलेज मिल गई थी. दे अटेन्ड द नॉलेज ऑफ क्रिएटिंग फायर. ठीक है, हाउ टू जनरेट फायर. But in the later stages, in the initial beginning of Paleolithic period, there was no knowledge of fire. But in the later stages, that is the, you can say, middle Paleolithic period or the upper Paleolithic period, they had the knowledge of fire. जब हम upper Paleolithic period की बात करते हैं, see, Paleolithic period is also divided into 3 parts. ये जो period है ना, ये भी 3 parts में divided है. First is the early or lower Paleolithic period. Second is the middle Paleolithic period. Third is the late or upper Paleolithic period. ठीक है, but in the upper Paleolithic period they developed the knowledge of fire. इस time period तक इनको fire की knowledge मिल चुकी थी. ठीक है, और late and upper Paleolithic period के बाद ही Mesolithic period आता है. After the late and upper Paleolithic period only we have the Mesolithic period, right? So in the initial period, in the middle part, fire, there was no knowledge. But in the later and upper Paleolithic period, they had the knowledge of fire. Point clear हो गया यहाँ तक सभी को? ठीक है, जल्दी से बता दीजिए अगर point clear हो गया है. So over here you will see the geographical setting of that time. अगर हम ancient Indian history की बात करें, when we talk about ancient Indian history, we have to look into the geographical setting of ancient Indian history. When we talk about Indian subcontinent, because we are studying Indian ancient history, not world. Okay, world ancient history हमारे syllabus में नहीं है. We have the ancient Indian history. So the geographical setting, the Indian subcontinent, it was as large as Europe.
इफ वी रिमूव रशिया फ्रॉम यूरोप, तो जितना बड़ा यूरोप है उतना ही बड़ा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है. एंड वी नो दैट इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज डिवाइडेड इनटू 5 बेसिक कंट्रीज. भारतीय सब कॉन्टिनेंट जो है वो 5 to 6 बेसिक कंट्रीज में डिवाइडेड है. फर्स्ट वी हैव इंडिया, then we have Bangladesh, we have Nepal, we have Pakistan and we have Bhutan. These are the major countries which belong to the Indian subcontinent. And India, it is protected from invasions from the north because of किसकी वजह से protected है? It is protected from invasion of the from the towards the north because of Himalayas, right? Himalayas के कारण north में invasion बहुत मुश्किल होता है. I will not say that invasion have not even occurred in history. From the northern side, invasions have occurred, the Turkish invasions, right? Even the Safavid dynasty, they also tried to invade India through the north only, but it was very tough for them to invade. बहुत tough था. Terrain जो है वो बहुत hilly है. The hilly terrain makes it impossible to cross the Himalayas. Okay, point clear हो गया. So we are bounded by the Himalayas on the north and seas on the other 3 sides we can see over here. ठीक है, बाकी की 3 sides पे हमारे पास water है which protects the country against the cold Arctic winds. हिमालयस की अगर हम बात करें तो आर्कटिक विंड से भी हमें प्रोटेक्ट करता है which is coming from Siberia through Central Asia. Okay, and over here there are different passes also which have connected India with the other continents. Indian subcontinents को बाकी continents के साथ connect किया गया है कुछ passes के through. There are some hilly regions and these hilly regions also have some passes through which travel is possible. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी आर जॉइंड इन बालूचिस्तान बाय द किरथार रेंजेस. यहाँ पर आप देखोगे यहाँ आपको मिलेंगी किरथार रेंजेस. वी हैव द किरथार रेंजेस ओवर हेयर, वी हैव दी सुलेमान रेंजेस ओवर देयर. ये जो है आपकी ये सुलेमान रेंज है. आई जूम इट आउट, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ थोड़ा. इन द मैप ओवर हेयर यू कैन सी दिस इज दी सुलेमान रेंज. ये जो है दिस इज दी सुलेमान रेंज. ठीक है, एंड सुलेमान रेंजेस आर दी कॉन्टिन्यूशन ऑफ हिमालयाज ओनली. ये हिमालयाज जो है इन्हीं का कॉन्टिन्यूशन है टुवर्ड्स साउथवर्ड. ठीक है, एंड इट कैन बी क्रॉस्ड थ्रू दी खाइबर पास, थ्रू बोलान पास एंड थ्रू गोमाल पास. देयर आर 3 मेजर पासेस थ्रू विच यू कैन क्रॉस द सुलेमान रेंजेस. खाइबर पास, बोलान पास एंड गोमाल पास. लेट्स हैव अ लुक एट द किरथार नेशनल पार्क. यहाँ पर आप देखोगे वी हैव द किरथार नेशनल पार्क ऑल्सो. ठीक है, यहाँ पर किरथार नेशनल पार्क भी है. सो ओवर हियर दीज आर दी पासेस, द खाइबर पास, द बोलान पास, द गोमल पास. दीज आर द पासेस through which two-way traffic between India and Central Asia was going on in the prehistoric times. Prehistoric means हड़प्पन civilization का जो time है तब भी हम trade करते थे. We used to trade at that time also through these passes. ठीक है, so during Harappan civilization, during Mahajanpad period, during even Vedic civilization, there were trade routes which were connecting India with Central Asia through Khyber Pass, Bolan Pass and Gomal Pass. Point clear हो गया यहाँ तक? ठीक है, so over here you can see these are the place. This is the Bolan Pass, this is the Khyber Pass और यहाँ से आपके trade routes इंडिया को Central Asia से जोड़ा जा रहा था. These were the routes, these were the trading routes or passes which were connecting Indian subcontinent with the other nations. ठीक है, पॉइंट क्लियर? तो प्लीज लेट मी नो इफ द पॉइंट इज क्लियर. ठीक है, चलो. नाउ दे वर डिफरेंट वैलीज ऑल्सो. अब अलग अलग वैलीज भी हुआ करती थी. व्हाट काइंड ऑफ वैलीज? सो वैलीज ऑफ कश्मीर एंड नेपाल. When we compare the valley of Kashmir and valley of Nepal, Nepal's valley was smaller in size. नेपाल की जो वैली थी ना वो साइज में छोटी थी as compared to the valley of Kashmir. And valley of Kashmir and Nepal, they were surrounded by high mountains on all the sides. And these valleys, here we saw the cultivation of art and culture. यहाँ नेपाल की जो वैली है स्पेशली कश्मीर वैली, they in the prehistoric times culture cultivated in these valleys. For example, in the Harappan civilization, not the Harappan civilization, in the Vedic civilization, during the Vedic civilization, Sanskrit as a language was developing. ठीक है, you will all agree with it, right? आप सब agree करोगे because we had the Vedas in the Vedic civilization and Vedas were written in Sanskrit language. हमारे पास Vedas थे ना Vedic civilization में, और Vedas कौन सी language में लिखे गए थे? संस्कृत में. ठीक है, so Sanskrit as a language was developing in the valleys of Kashmir, in the valleys of Nepal. Plus we can also see the cultivation of भक्ति और डिवोशन टुवर्ड्स लॉर्ड शिवा स्पेशली इन कश्मीर. कश्मीर में जो शैवाइट्स हैं, ठीक है, शैवाइट्स आर द पीपल हु वर्शिप लॉर्ड शिवा. शैवाइट्स वो लोग हैं जो कि शिव की पूजा करते हैं, शिव की अर्चना करते हैं. सो शैवाइट्स वर डेवलपिंग इन कश्मीर. प्लस हैव यू ऑल सी दैट तांडव पोजीशन
ऑफ तांडव पोस्चर ऑफ लॉर्ड शिवा, सभी ने देखा है वो तांडव पोस्चर लॉर्ड शिवा का, ठीक है, सभी ने देखा है दैट तांडव पोस्चर ऑफ लॉर्ड शिवा वॉज वर्शिप्ड इन वैली ऑफ कश्मीर. इट इज कंसिडर्ड एज वेरी सेक्रेड इन कश्मीर. कश्मीर की वैली में जो शैवाइट्स हैं, स्पेशली द शैवाइट्स, दे वर्शिप दैट फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा, दैट फॉर्म विच परफॉर्म्स द मिस्टिक डांस ऑफ तांडवा. जो तांडव का मिस्टिक डांस है वो जो परफॉर्म करते हैं लॉर्ड शिवा, उस रूप में उनकी पूजा की जाती है शैवाइट्स के द्वारा कश्मीर में. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. यस, द नटराज इमेज. ओके, सो ओवर हियर द तांडवा इज द फॉर्म ऑफ कनेक्शन. ठीक है, वो एक तरीके का कनेक्शन है लॉर्ड शिवा से. नाउ ओवर हियर वी कैन सी that here we can find repositories of largest number of Sanskrit manuscripts both in valleys of Kashmir and Nepal. आज के टाइम पे अगर आप हिस्ट्री की बात करो तो एंशंट हिस्ट्री से रिलेटेड संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट जो हैं, किताबें जो लिखी गई हैं सेजेस के द्वारा, वो कश्मीर और नेपाल में पाई जाती हैं. ठीक है, एंड दीज वैलीज ऑल्सो हैड डिफरेंट ट्रेड रूट्स एज वेल. यहाँ पर ट्रेड रूट्स भी काफ़ी थे. ठीक है, पॉइंट क्लियर. नाउ ओवर हियर इन प्री हिस्ट्री, अगर आप प्री हिस्ट्री की बात करें, प्री हिस्ट्री इज द पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट ह्यूमन बीइंग टू द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग. इन्वेंशन ऑफ राइटिंग टुक प्लेस इन द हरप्पन सिविलाइजेशन. इन्वेंशन ऑफ राइटिंग कब हुआ? हरप्पन सिविलाइजेशन के चलते हुआ. ठीक है, सो नाउ इन द हरप्पन सिविलाइजेशन वी हैव सम scripts which we have identified. हमारे पास हरप्पन सिविलाइजेशन की कुछ scripts हैं which are right now getting decodified. Right, they are right now getting decodified. We do not know the exact meaning of the scripts. The researchers are researching about it still. Right, so we can say that from the end of Harappan civilization, Harappan civilization के end में we get the invention of writing as well. हमें पता चलता है कि लोगों को लिखना भी समझ आ गया था हरप्पन के एंड पर. ठीक है, हरप्पन एज के बिल्कुल एंड पीरियड में. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को. सो वी हैव स्टडीड द पेलियोलिथिक पीरियड, वी हैव स्टडीड द प्री हिस्टोरिक पीरियड. नाउ इन द प्री हिस्ट्री ओनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मेसोलिथिक पीरियड. प्री हिस्ट्री में ही अब हमें शुरू करना है मेसोलिथिक पीरियड से. नाउ पेलियोलिथिक पीरियड वाज द पीरियड ऑफ फूड गैदरर्स, हंटर्स. ठीक है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट मेसोलिथिक पीरियड इट वाज द पीरियड ऑफ द हंटर्स एंड हर्डर्स. ठीक है, the hunters and herders. Point clear हो गया यहाँ तक सभी को. So in the Mesolithic period we have hunters and herders. When we talk about the hunters and herders, we know in the Paleolithic period, by the end of Paleolithic period, we had invented fire. Paleolithic period के end तक आते आते fire हमने invent कर दिया था. Now we got the hunters and herders. Now who are the herders? Herders are the people who have cattle, who keep cattle. राइट, जिनके पास कैटल होती है, भेड़ बकरी होते हैं, उनको तो हर्डर बोलते हैं, चरवाहा जिसको हम कहते हैं. ठीक है, सो हंटर्स एंड हर्डर्स, दिस वाज द पीरियड ऑफ हंटर्स एंड हर्डर्स. नाउ पीपल डिडंट नो अबाउट एग्रीकल्चर बट दे न्यू हाउ टू डोमेस्टिकेट द एनिमल्स. अब उनको पता था कि डोमेस्टिकेट कैसे करना है एनिमल्स को. दैट इज वाई वी हैव द पैस्टोरल इकोनॉमी इन दिस पीरियड. ठीक है, स्टिल पीपल डिडंट नो अबाउट एग्रीकल्चर. ठीक है, मेसोलिथिक पीरियड तक भी लोगों को अभी एग्रीकल्चर की पूरी जानकारी नहीं हुई थी, बट पीपल न्यू हाउ टू यूज द कैटल्स. ठीक है, हाउ टू रियर द शीप, हाउ टू रियर द गोट, हाउ टू मिल्क द गोट, हाउ टू मिल्क द काउ. पीपल न्यू अबाउट इट कि भाई जानवरों से भी खाने के प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, तन ढकने के प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है. सो मेसोलिथिक पीरियड, राइट इट डाउन, दिस एज इट रिप्रेजेंट्स द इंटरमीडिएट स्टेज इन स्टोन एज. स्टोन एज का जो इंटरमीडिएट स्टेट है, राइट, वी हैव द रॉ मटेरियल्स, देन वी हैव द इंटरमीडिएट गुड्स, देन वी हैव द फाइनल प्रोडक्ट. तो जो बीच का स्टेज है ना, द मिड स्टेज ऑफ स्टोन एज इज नोन एज द मेसोलिथिक एज. ओके, दैट, यस, यू कैन कॉल इट अ ट्रांजिशन एज ऑल्सो. आप इसको ट्रांजिशन एज भी बोल सकते हो. एंड वी नो दैट पेलियोलिथिक पीरियड डेवलप्ड इन आइस एज. हमें पता था पेलियोलिथिक पीरियड डेवलप होता आइस एज में, विच इज ऑल्सो नोन एज पेलियोस्टोसीन एज. इसको पेलियोस्टोसीन एज भी बोलते हैं. ठीक है, द आइस एज इज ऑल्सो नोन एज द पेलियोस्टोसीन एज और पेलियोस्टोसीन एरा. यू कैन कॉल इट पेलियोस्टोसीन एरा ऑल्सो. ओके, बट वेन वी टॉक अबाउट द मेसोलिथिक पीरियड, द मेसोलिथिक पीरियड बिलोंग्स टू द होलोसेना, राइट इट डाउन, और यू कैन से होलोसीन एरा. ठीक है, ये जो एज है ये होलोसीन एरा से बिलोंग करता है.
ठीक है. Holocene era is the era, it is the phase in history which came after Paleocene era. Now what is the difference between Paleocene era and Holocene era? The difference is in Paleocene era there was ice everywhere. Okay, the climate was very cold, the weather was very cold, but in the Holocene era now the weather was getting warmed up. अब धीरे धीरे वेदर जो है वो धीरे धीरे गर्म होने लग रहा था. देयर वॉज क्लाइमेटिक चेंज, देयर वॉज चेंजेस इन द वेदर, इन द मॉनसून. ठीक है. नाउ द आइस एज वॉज गोइंग डाउन, धीरे धीरे आइस एज खत्म हो रहा था. पीपल वर नाउ कमिंग आउट ऑफ देयर केव्स, लोग अपने गुफाओं से बाहर आ रहे थे. ठीक है. देयर वॉज ग्रीनरी ऑल अराउंड. ठीक है. पॉइंट क्लियर हो गया. देयर वर ग्रासलैंड्स ऑल अराउंड. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन होलोसीन एरा एंड प्लेस्टोसीन एरा. समझ आ गया दोनों की डिफरेंस. ठीक है. दोनों का मतलब समझ आ गया. सो होलोसीन एरा एंड द प्लेस्टोसीन एरा. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द होलोसीन एरा, हियर इन द मेसोलिथिक पीरियड पीपल स्टार्टेड डूइंग फिशिंग. यहाँ पर लोगों ने फिशिंग करना शुरू कर दिया. पीपल स्टार्टेड फूड गैदरिंग. ठीक है. लोगों ने फूड गैदरिंग स्टार्ट कर दी. देन ऑल्सो पीपल स्टार्टेड हंटिंग. हंटिंग तो चलो हो ही रहा था. स्टार्ट क्या किया? इट वॉज दे वर कॉन्टिन्यूइंग हंटिंग. अनदर फीचर ऑफ दिस एज इज पीपल नाउ स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स. लोगों ने अब एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया. नाउ व्हाट इज डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स? लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. व्हाट डू यू गिव वन एग्जाम्पल ऑफ डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स. जैसे कि आप जानवरों को पालते हो ना, गाय को अपने घर में रखते हो, दूध दोते हो उसका, राइट, या फिर बकरियों को रखते हो. ठीक है. डॉग्स को रखते हो, कैटल रखते हो, वो डोमेस्टिकेशन होता है. बफलो, शीप एटसेट्रा. ओके, दैट इज डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स. दे स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग द एनिमल्स. अब जानवरों को वो पकड़ के हंट नहीं कर रहे थे, वो उनको यूज कर रहे थे घर में रखकर. जो भी उनसे नेचुरल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, दे वर यूजिंग द नेचुरल प्रोडक्ट्स. ओके. एंड हियर पीपल स्टार्टेड डेवलपिंग टूल्स. टूल्स वर डेवलप्ड इन पेलियोलिथिक पीरियड ऑल्सो, बट द टूल्स वर नॉट शार्प. टूल्स तो आपके पेलियोलिथिक पीरियड में भी थे, बट दे वर जस्ट मेंट फॉर हंटिंग. ठीक है. टूल्स विच वर इन द पेलियोलिथिक पीरियड, दे वर जस्ट फॉर हंटिंग ओनली. ठीक है. सो दे वर वेरी रफ एजेड टूल्स. बहुत रफ एजेड टूल्स हुआ करते थे. बट इन मेसोलिथिक पीरियड वी हैड द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोलिथ्स. हमारे पास यहाँ पर माइक्रोलिथ्स का इन्वेंशन हुआ. आई शो यू द इमेज ऑफ माइक्रोलिथ्स ऑल्सो. मैं आपको माइक्रोलिथ्स की ना इमेज दिखा देती हूँ. एवरीबडी कैन सी दिस, दीज इमेजेस. प्लीज लेट मी नो अगर आपको ये विजिबल है. माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल. ठीक है. माइक्रो मीन्स स्मॉल. लिथ मीन्स स्टोन. ओके. लिथ का मतलब क्या होता है? स्टोन होता है. So here we had small stone tools. Now why? The question is why? In Paleolithic period the stone tools were very large, very big. यहाँ पर आप देखोगे these are the Paleolithic tools. These are so huge. एक बड़ा सा पत्थर ही उठा लिया इन लोगों ने. The weapons of Paleolithic period are very huge. ठीक है. But the weapons of Mesolithic period are very small. Why? Because now they were not keen on hunting animals. अब ये लोग animals को hunt नहीं कर रहे थे. ठीक है. नाउ दे वर डोमेस्टिकेटिंग द एनिमल्स, सो दे डिड नॉट रिक्वायर ह्यूज वेपन्स. प्लस व्हेन दे यूज्ड टू गो आउट टू मेक देयर एनिमल्स ग्रेज इन द ग्रासलैंड्स, दे यूज्ड टू कैरी दी स्मॉल टूल्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनी वाइल्ड एनिमल. जब अपने भेड़ बकरी को चराने बाहर जाते थे ना, तो क्या होता था कि हो सकता है कि कोई जानवर इन पे अटैक कर दे. अब बड़े बड़े वेपन्स क्या लेकर घूमेंगे, इतनी कैटल्स है इनके पास, इसीलिए ये छोटे छोटे वेपन्स लेकर जाते थे ताकि कोई अटैक करे तो ये उससे बच सके. ठीक है. सो what they did, they were not settling down, they were again they were here nomads only. ये अभी settle down नहीं हुए थे. ठीक है. they were nomads. who are nomads? Nomads are people who do not settle down at one place. they always keep on moving from one place to another. nomads वो लोग हैं जो एक से दूसरी जगह शिफ्ट होते ही रहते हैं, घूमते रहते हैं, बंजारास टाइप, राइट. बट दे वर नॉट सेटल्ड पीपल. माइक्रोलिथिक पीपल जो थे, मेसोलिथिक पीपल जो थे, वो नोमैड्स थे. इवन द पेलियोलिथिक पीपल वर नोमैड्स. मेसोलिथिक वर ऑल्सो नोमैड्स. दे विल सेटल डाउन ड्यूरिंग द न्योलिथिक पीरियड. अब न्योलिथिक पीरियड जब आएगा ना, तब ये सेटल डाउन करेंगे. व्हेन दे विल लर्न एग्रीकल्चर, बिकॉज when you learn agriculture you have to settle down at one place. जब आप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हो आपको एक जगह रुकना पड़ता है. ठीक है. बिकॉज क्रॉप्स दे नीड टाइम टू ग्रो. ओके. जो क्रॉप्स होते हैं उनको टाइम लगता है ना ग्रो होने में, तो आपको टिकना पड़ता है एक जगह. ठीक है. सो इन द मेसोलिथिक पीरियड दे हैड माइक्रोलिथ्स. ठीक है. दैट मीन्स माइक्रोलिथ्स का डेफिनेशन आप लिख सकते हो. माइक्रोलिथ्स मीन्स द मिनिएचर स्टोन टूल्स which are made up of crypto
क्रिस्टलाइन सिलिका, जो कि आपकी क्रिप्टो क्रिस्टलाइन सिलिका से बने होते हैं, ठीक है। एंड दे वर ज्योमेट्रिकल, नॉन ज्योमेट्रिकल इन शेप, अलग अलग शेप्स के हुआ करते थे माइक्रोलिथ्स, दैट यू हैव टू रिमेंबर। अनदर फीचर ऑफ मेसोलिथिक पीरियड इज दैट पॉटरी वॉज स्टिल एब्सेंट इन दिस पीरियड, ठीक है। इस पीरियड में भी पॉट मेकिंग जो था वो अभी शुरू नहीं हुआ था। पीपल डिड नॉट एक्वायर द नॉलेज ऑफ क्रिएटिंग पॉट्स, ऑफ मेकिंग पॉट्स, okay, point clear? So pottery is absent in this period, but it is said that the pots in the later, or you can say the end part of Mesolithic period have been found in Mirzapur. जो end part है Mesolithic period का, MP means Mesolithic period, the pots have been found in Mirzapur. कहाँ पाए गए हैं? मिर्ज़ापुर में पाए गए हैं, which is in UP, ठीक है। कहाँ है? यूपी में है। तो आप बोल सकते हो बाय द एंड ऑफ मेसोलिथिक पीरियड व्हेन नियोलिथिक पीरियड वाज स्टार्टिंग, देखो मेसोलिथिक पीरियड इज कमिंग डाउन, इट इज एंडिंग, नियोलिथिक पीरियड इज स्टार्टिंग, दिस इज नियोलिथिक पीरियड, दिस इज मेसोलिथिक पीरियड। सो बाय द एंड ऑफ मेसोलिथिक पीरियड वी हैव द एविडेंसेस ऑफ पॉट्स विच आर फाउंड इन मिर्जापुर, दैट इज इन यूपी। ओके, पॉइंट क्लियर हो गया, यहां तक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई। सो इफ दे आस्क यू दैट इन मेसोलिथिक, इन द अपर मेसोलिथिक पीरियड और द इनिशियल मेसोलिथिक पीरियड वी हैव एविडेंसेस ऑफ पॉटरी, विल इट बी ट्रू और फॉल्स? जल्दी से इसमें बताओ। इन द इनिशियल पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, the pots, the evidences of pots have been found, is it true or false? जल्दी से बताओ। in the initial mesolithic period the pots have been found, is it true or false? initial, starting में। वेरी गुड गरिमा, धनश्री, ओम, सुचेता, दिनेश, वैदेही, एंटनी, राजेंद्र, अनूप, अंबर, वेरी गुड। So it is false because in the end part of Mesolithic period, that is in the transition period from Mesolithic to Neolithic, we have the evidence of pots, not in the initial period. Okay, point clear हो गया सभी को? चलो, तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया है सबको। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द लास्ट फेज ऑफ मेसोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड का जो लास्ट फेज है आपका, this phase saw the beginning of plant cultivation. That means they are now slowly, gradually learning the activity of agriculture. अब धीरे धीरे ग्रेजुअली इनको एग्रीकल्चर समझ आ रहा है, दे आर लर्निंग द प्लांट कल्टिवेशन। सी इन द मेसोलिथिक पीरियड आई टोल्ड यू दैट टेम्परेचर वॉज वार्मिंग अप, क्लाइमेट वॉज वार्मिंग अप, राइट। हमने ये पढ़ा था मेसोलिथिक पीरियड में कि टेम्परेचर वार्म अप हो रहा है। सो नाउ देयर आर ग्रासलैंड्स, पीपल आर लुकिंग एट प्लांट्स, वीड्स, जो वाइल्ड प्लांट्स हैं उनको देख रहे हैं कि कैसे ये उग रहे हैं, बिकॉज इन द आइस एज देयर वाज नो ग्रोथ, राइट। आइस एज में तो कुछ भी नहीं था, सब जगह बर्फ थी, एवरीवेयर इट वाज जस्ट आइस एंड आइस। बट नाउ इन द मेसोलिथिक पीरियड द ह्यूमंस वर वेरी एस्टोनिश्ड टू सी ग्रीन प्लांट्स कमिंग अप फ्रॉम द अर्थ, फ्रॉम द सॉइल. So they were learning plant cultivation. So again in this last phase only they started learning plant cultivation. Okay, point clear? And the another important feature of Mesolithic period is, Mesolithic period का एक और important feature है, that is, please write it down, that the Mesolithic era, it initiated means it started the rock art in prehistory. ये पॉइंट आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. सो इन द मेसोलिथिक एरा, दिस एरा इनिशिएटेड और स्टार्टेड द रॉक आर्ट इन प्री हिस्ट्री. जो आप रॉक्स पे, जो केव्स पे आपको ड्राइंग्स मिली हुई दिखी है ना, बनी हुई दिखी है, ठीक है, दैट वी हैव फाउंड इन द मेसोलिथिक एरा ओनली. एंड हाउ वी कैन से दैट? बिकॉज इन 1867 the first rock painting, write it down, in 1867 the first rock paintings in India, they were discovered in UP. कहाँ पर? यूपी में कैमूर रीजन है, कैमूर हिल्स हैं, ठीक है, वहाँ पर हमने पहली रॉक पेंटिंग्स डिस्कवर की हैं. एंड नाउ ओवर 150 पेंटिंग्स, 150 मेसोलिथिक आर्ट साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड. ठीक है, पॉइंट क्लियर? आई विल शो यू एन इमेज ऑल्सो. मैं आपको एक इमेज भी दिखा देती हूँ. ओवर हियर एवरीबडी कैन सी दिस. ठीक है, सब बच्चे ये देख सकते हैं. तो ये जो रॉक पेंटिंग्स हैं, दीज रॉक पेंटिंग्स, सच काइंड ऑफ रॉक पेंटिंग्स, बिम्बेटका केव आर्ट जो है वो पाई गई है आपकी मेसोलिथिक पीरियड के
एज अ पार्ट ऑफ मेसोलिथिक पीरियड. ठीक है. नाउ सम पीपल से दैट इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पेलियोलिथिक पीरियड. कुछ हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि ये जो रॉक पेंटिंग्स है ना, द भिमबेटका केव्स, दे आर पार्ट ऑफ पेलियोलिथिक पीरियड. बट सम हिस्टोरियंस से दैट व्हेन द पेलियोलिथिक पीरियड वाज एंडिंग, ओनली देन व्हेन द मेसोलिथिक पीरियड स्टार्टेड वी सॉ द स्टार्टिंग ऑफ रॉक आर्ट. तो आप ये बोल सकते हो कि जब पेलियोलिथिक पीरियड खत्म हुआ, मेसोलिथिक पीरियड का ट्रांजिशन हुआ, स्टार्ट हुआ मेसोलिथिक पीरियड, तब जाकर लोगों ने रॉक आर्ट बनाना शुरू किया. ठीक है. पॉइंट क्लियर. ओके. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द मेसोलिथिक पीरियड, जब हम मेसोलिथिक पीरियड की बात करते हैं, वी हैव पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक. व्हेन इट वाज एंडिंग, जब ये एंड हो रहा था, पीपल लर्नड प्लांट कल्टिवेशन, दे न्यू हाउ टू ग्रेज द कैटल, दे न्यू हाउ टू मिल्क द काउज एंड बफलोज. नाउ वी सॉ द स्टार्टिंग ऑफ द नियोलिथिक एज. अब हम देखते हैं नियोलिथिक एज की स्टार्टिंग. नाउ वी हैव सीन पेलियोलिथिक पीरियड वाज द पीरियड ऑफ फूड हंटर, द हंटर्स एंड फूड गैदरर्स. Mesolithic period was the period of hunters and herders. Okay, but Neolithic age, ये जो Neolithic age है, it is the period of food producing people, or you can call it the food producing stage. आप इसको food producing stage भी बोल सकते हो. ठीक है. पॉइंट क्लियर हो रहा है. बिकॉज पीपल लर्नड कल्टिवेशन, दे ऑलरेडी न्यू अबाउट फायर. फायर के बारे में तो इनको पता ही था, एंड दे नाउ न्यू हाउ टू कल्टिवेट फूड ऑल्सो. So it is the food producing stage. Now people, they still hunted. ऐसा नहीं है लोगों ने हंट करना छोड़ दिया. You cannot say that people stopped hunting. No, people still hunted, but they were also focused on growing food. अब उनको फूड बनाना भी आ गया, ग्रो करना भी आ गया. ठीक है. पॉइंट क्लियर हो रहा है. सो इन दी नॉर्दर्न इंडिया द न्यूलिथिक एज इमर्ज्ड. नॉर्दर्न इंडिया में आप देखते हो दैट न्यूलिथिक एज स्टार्टेड. ठीक है. इट इमर्ज्ड इन दी नॉर्दर्न इंडिया. ठीक है. यहाँ पर आप लिखोगे इट इज दी फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज. ठीक है. इसको हम बोलेंगे फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज. एंड न्यूलिथिक एज इट इमर्ज्ड अराउंड समवेयर अराउंड नॉर्दर्न इंडिया. ये नॉर्दर्न इंडिया में भी निकल कर आया था. एंड इट वॉज नॉट लिमिटेड टू नॉर्दर्न इंडिया, इट वॉज ऑल्सो सीन इन द ईस्टर्न इंडिया. ईस्टर्न इंडिया में भी था. इवन इन साउथ पोर्शन में भी न्यूलिथिक एज वॉज विजिबल, इट वॉज प्रोमिनेंट. ठीक है. नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्री हिस्ट्री. आपके प्री हिस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इन फैक्ट देर वॉज अ हिस्टोरियन विद द नेम वी गॉर्डन चिल्ड. ठीक है. ये हिस्टोरियन थे हमारे. ही वॉज अ ब्रिटिश हिस्टोरियन एंड ही कॉल्ड द न्यूलिथिक पीरियड एज द न्यूलिथिक रेवोल्यूशन. इन्होंने न्यूलिथिक पीरियड को न्यूलिथिक रेवोल्यूशन कहा. ही कॉल्ड दिस पीरियड एज न्यूलिथिक रेवोल्यूशन. यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर प्रीलिम्स. दे कैन गिव यू 4 names that who among the following described the Neolithic phase as Neolithic revolution. It was V. Gordon Childe. Okay, point clear. Now the question which can come in mains is why he called Neolithic phase as Neolithic revolution. Question जो आपका आ सकता है वो ये है कि Neolithic age को या Neolithic phase को Neolithic revolution क्यों कहा जाता था. So there were many reasons. First of all, it was a food producing stage. People learnt the art of growing food. अब लोगों को समझ आ गया कि खाना बनाना कैसे है. ठीक है. So there are basic reasons that we are going to study. First reason is the heading will be advent of food production. ये हो जाएगी आपकी पहली heading. Advent of food production. Advent means introduction, coming of food production. Because when you will write answers, you will write in headings. ठीक है. So advent of food production, here you will write, यहाँ पर आप लिखोगे that the Neolithic man, neo means new, new का मतलब क्या होता है नया. ठीक है. So you will write the Neolithic man, he cultivated land now. अब धीरे धीरे लैंड कल्टिवेट करना शुरू किया. नाउ पीपल वर नॉट नोमैड्स. अब लोग नोमैड्स नहीं थे. पीपल वर सेटलिंग डाउन बिकॉज दे वर इंडल्जिंग इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. सो दे वर सेटलिंग डाउन. सो न्यूलिथिक मैन ही कल्टिवेटेड लैंड एंड ऑल्सो ही ग्रू फ्रूट्स. इन्होंने फ्रूट्स भी ग्रो करने शुरू कर दिए. फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है फ्रूट्स के. ही ऑल्सो ग्रू राइट कॉर्न्स भी इन्होंने ग्रो किए. कॉर्न्स के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं. रागी हो गया. वन एग्जाम्पल कैन बी रागी. अनदर एग्जाम्पल कैन बी कुलाठी. इन इंग्लिश इट इज नोन एज हॉर्स ग्राम. इंग्लिश में इसको हम हॉर्स ग्राम बोलते हैं. कुलाठी इज यूज्ड इन आयुर्वेदा मेडिसिन ऑल्सो. ओके. एंड द न्यूलिथिक मैन ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. इन्होंने एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया. पालना, पशुओं को पालना शुरू कर दिया. एंड ही ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड कैटल्स, sheep, goats.
ओके, इन सबको इन्होंने डोमेस्टिकेट करना शुरू किया. सो इट वॉज द एडवेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन. नाउ इंस्टेड ऑफ हंटिंग एनिमल्स एंड ईटिंग देयर मीट, दे वर नाउ ग्रोइंग देयर फूड. नाउ दे वर मोर इंटरेस्टेड इन ग्रोइंग फूड. वाई? बिकॉज इट वॉज न्यू एक्टिविटी फॉर देम. इनके लिए तो नई एक्टिविटी थी ना, तो दे वर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. ओके, पॉइंट क्लियर? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. कमिंग ऑन टू द सेकेंड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट पे आते हैं. द सेकेंड पॉइंट इज द इनोवेशंस इन टेक्नोलॉजी. सेकेंड पॉइंट आपका आता है innovations in technology. Technological advancements could be seen in the Neolithic age. So here the Neolithic man innovated, write it down, the Neolithic man innovated, he innovated in the production of stone tools. अब अलग अलग तरीके के, because as he was getting clever, जैसे जैसे दिमाग आ रहा था, as he was developing his mind, he was also innovating in different areas of technology. For example, for them the new technology was stone tools. उनके लिए तो जो नया था वो stone tools ही थे. उनके लिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या था? इंटरनेट थोड़ी था. देयर वाज नो इंटरनेट एट दैट टाइम, राइट? सो फॉर देम द न्यू थिंग वाज स्टोन टूल्स. दैट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वाज सीन इन द स्टोन टूल्स ओनली. ठीक है, तो उनके लिए यही बहुत बड़ी एक कामयाबी थी. दिस वाज देयर बिगेस्ट अचीवमेंट, दैट वी हैव स्टोन टूल्स, वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, वी कैन किल द एनिमल्स, वी कैन किल द ओपोजिंग पार्टी, राइट? हमारे लिए तो काफी अलग अलग न्यूक्लियर वेपन्स आ गए हैं, उनके लिए तो स्टोन टूल्स ही न्यूक्लियर वेपन्स थे. ठीक है, सो दे इनोवेटेड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टोन टूल्स. अब इन्होंने स्टोन टूल्स में इनोवेशन शुरू किया. ठीक है, नाउ दे वर पॉलिशिंग देम, उनको पॉलिश कर रहे थे. ठीक है, दे वर पॉलिशिंग द स्टोन टूल्स. ठीक है, ऑल्सो दे वर शार्पनिंग देम, उनके एजेस को शार्प कर रहे थे कि भाई एक बार में ही सामने वाला धराशायी हो जाए. इन वन अटैक ओनली द अदर पर्सन कैन जस्ट फॉल डाउन. ठीक है, so they were sharpening their tools. Plus, you know, instead of using stones, they were also using other elements. For example, quartzite. इन्होंने quartzite metal भी use करना शुरू कर दिया tool making में, to make the tools more stronger. ठीक है, ऐसे metals use करने शुरू किए जिससे stone tools जो हैं वो और ज़्यादा stronger हो जाएं. ठीक है, so I'll show you an image also. मैं आपको image दिखा देती हूँ. Everybody can see this image. Please let me know if you can see this. So they were innovating even in the tools. आप देख सकते हो in the image also. The process of innovating the tools, it started with a large piece of rock. They took a large piece of rock. Then they shaped the rock. फिर ये rock को shape देने लगे. In the Paleolithic period, they used to just pick up the rock and they used to kill the animal. कोई भी rock उठाते थे और सर फोड़ देते थे जानवर का. In the Mesolithic period, they were using microliths, small rocks, right, for self-defense. Okay, but in Neolithic period, they were creating different types of tools. They were innovating in the tools itself. So they used, they used to shape the rock. Then they used wood to sharpen the edges. धीरे धीरे जो edges के आसपास थोड़े rough edges थे उसको तोड़ देते थे. They used to sharpen the edges. They used to trim the edges, and then this was the tool that was ready for attack. इस तरीके के जो टूल्स होते थे, जैवलिन बनाते थे, ठीक है, हथौड़ी बनाते थे, कुल्हाड़ी बनाते थे, इस तरीके के टूल्स बनाया करते थे. ठीक है, यहां तक पॉइंट्स क्लियर हो गए सभी को? द टूल मेकिंग प्रोसेस इज क्लियर आई गेस. ओके, चलो इतना क्लियर हो गया सभी को. नाउ दीज वर दी टूल्स. इस तरीके के टूल्स हुआ करते थे दैट दे वर यूजिंग एट दैट टाइम. दे वर यूजिंग ऑल्सो द क्वार्ट्जाइट मेटल. क्वार्ट्जाइट मेटल भी यूज किया जाता था. ठीक है, नाउ इन द न्यूलिथिक पीरियड, इस पीरियड के अंदर आप देखोगे दैट द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाई दिस इज नोन एज न्यूलिथिक रेवोल्यूशन इज इन्वेंशन ऑफ, राइट इट डाउन, इन्वेंशन ऑफ पॉटरी. ठीक है, ये आपका थर्ड एलिमेंट हो जाता है. व्हाई गॉर्डन ही कॉल्ड दिस पीरियड एज न्यूलिथिक रेवोल्यूशन. ठीक है, सो हियर वी हैड पॉटरी. Pottery means now they were also creating and developing their artistic sides. अब अपने artistic sides को भी develop कर रहे थे ये लोग. So here you can see, you can write that the Neolithic era communities or the people who belong to this era, they first made pottery by hand. सबसे पहले ये हाथों से मटका बनाया करते थे. Then, write it down, then with the help of potter's wheel. So initially they started making pottery with hand only, manually only.
but then they used potter's wheel. There is a round wheel on which the clay is put, the wheel is rotated and the pot is given a shape, the clay is given the shape of a pot. तो बीच में क्या करते हैं, क्ले रख देते हैं मोटा सा और फिर पहिए को घुमाते हैं, and then the pot is given the shape by hands. ठीक है, so that is the potter's wheel. इसको हम potter's wheel बोलते हैं. This is known as the potter's wheel. So potter's wheel was finally used in the invention of pottery. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया सभी को. Potter's wheel were finally used. Also it is said that they invented the use of wheel also. जो wheel भी है वो भी invent हुआ है आपका Neolithic period में, because they used to carry things from one place to another, because they were creating houses also, they were doing house building also. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. तो यहाँ पर क्या था कि घर भी बना रहे थे वो लोग, अपने हट्स बना रहे थे, छोटे छोटे हट्स बना रहे थे. दैट इज वाई दे यूज्ड व्हील्स ऑल्सो, व्हील कार्ट्स ऑल्सो टू ट्रांसपोर्ट वन थिंग फ्रॉम अनदर. सो दे हैड व्हील्स ऑल्सो. ठीक है, तो इन्वेंशन ऑफ पॉटरी भी हो गया यहाँ पर. अब द नेक्स्ट पॉइंट ओवर हियर इज इमर्जेंस ऑफ, because they were creating villages, they were settling down, so we have the emergence of the self-sufficient village communities. We see the emergence of self-sufficient village communities in the later phases. Neolithic period के जो later phases आते हैं, here we see the emergence of self-sufficient village communities. ठीक है, now Neolithic people, NP means Neolithic people, they were living a settled life. यहाँ पर ये लोग जो थे वो एक settled life जीने की कोशिश कर रहे थे, because we had agriculture over here, we had technological advancements over here, हमारे पास technological advancements भी थे. ठीक है, then we had creative advancements also, because we had potteries. ठीक है, यहाँ पर house building भी हो रहा था. So that is why they were now living a settled life. They were no longer a nomad. अब ये लोग nomad नहीं थे. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज द डिवीजन ऑफ लेबर based on your gender or sex and age. So as society was progressing in the Neolithic period, there was a need for additional labor. जैसे जैसे society progress कर रही थी वैसे वैसे इनको additional extra लोगों की मदद की ज़रूरत थी. So the need of the extra labor or additional labor was recognized, and that is why labor was procured from other non-kin groups also. That means if there is one particular village over here, there is another village over here. Neolithic period है, यहाँ पर एक village है, one unit is there of people. Then another village is over here. इस village में कम से कम 10 घर हैं मान लो. In this village we have 10 houses. In this village we have 15 houses. ठीक है. So now as they were expanding their agriculture, as they were expanding themselves, progressing, they were also requiring additional labor. So they were also contacting the other villages. ठीक है, एक दूसरे को contact करते थे to take the help of other people. दूसरे यूनिट्स की लोगों की हेल्प के लिए एक दूसरे को कांटेक्ट किया करते थे. सो देयर वाज एक्सचेंज ऑफ लेबर बिटवीन विलेजेस. लोगों के बीच में विलेजेस लेबर का एक्सचेंज होता था. ठीक है, प्लस लेबर वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. फॉर एग्जांपल, इफ यू बिलोंग टू अ एज ऑफ 10 to 18, देयर विल बी डिफरेंट वर्क अलॉटेड टू यू. इफ यू बिलोंग टू द एज ऑफ 18 to 25, आपके लिए अलग काम होगा. अगर आप 25 से 35 की एज ग्रुप के हो, आपके लिए अलग काम होगा. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. सो दे वर टेकिंग द हेल्प ऑफ डिफरेंट विलेजेस ऑल्सो. दे वर डिवाइडिंग वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. ठीक है, पॉइंट क्लियर. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. चलो अब आगे बढ़ते हैं. एज यू ऑल सी दैट देयर वाज नो रिटन रिकॉर्ड्स, तो ऑब्वियसली दे वर कम्यूटिंग ओरली. ठीक है, आपको पता है कि रिटन रिकॉर्ड्स तो है नहीं, तो यानी कि कुछ लिखते नहीं थे, मुंह से बात करते थे. ठीक है, तो जो भी उनकी लैंग्वेज होगी उस लैंग्वेज में ये दे यूज्ड टू कम्युनिकेट. आइदर कोड लैंग्वेज हो सकती है, कुछ भी, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है. जैसे हमारी लैंग्वेज है वैसे उनकी लैंग्वेज है. ठीक है, पॉइंट क्लियर. सो दिस इज द फीचर ऑफ नियोलिथिक पीरियड. अब देखो, व्हेन वी हैव द पेलियोलिथिक पीरियड, इट एंड्स, वी हैव द मेसोलिथिक पीरियड. अगेन इट एंड्स, वी हैव द नियोलिथिक पीरियड. देन द नियोलिथिक पीरियड ऑल्सो एंड्स एंड वी हैव द चाल्कोलिथिक पीरियड. जैसे आपकी नियोलिथिक पीरियड एंड में आती है. अब जैसे आप बोलोगे, व्हाट डू यू मीन बाय एंड? डू पीपल डाई? नो, पीपल आर नॉट डाइंग. ठीक है, ये जो पीरियड्स हैं ये तो हमने नाम दिया है ना. दे हैव नॉट गिवन देमसेल्व्स अ नेम. उन लोगों ने अपने आप को कोई नाम थोड़ी दिया था, ये तो हमने उनको नाम दिया है बेस्ड ऑन द वर्क दे वर डूइंग. ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एंड, दैट मीन्स दे आर नाउ एडवांसिंग, दे आर प्रोग्रेसिंग. सो वी हैव गिवन अ डिफरेंट नेम टू द प्रोग्रेस्ड वर्जन.
ठीक है, जो नियोलिथिक पीरियड के लोग हैं ये प्रोग्रेस करते हैं, जैसे जैसे ये प्रोग्रेस करते हैं हम इनको दूसरा नाम देते हैं, ठीक है, एज दे प्रोग्रेस वी चेंज देयर नेम, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, प्लीज टेल मी, प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव नो डाउट टिल दिस पॉइंट। ओके, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द चाल्कोलिथिक एज, चाल्कोलिथिक एज इज ऑल्सो नोन एज द कॉपर स्टोन एज। चाल्कोलिथिक एज को क्या बोलते हैं हम? कॉपर स्टोन एज बोलते हैं। अब इसको कॉपर स्टोन एज क्यों बोलते हैं? बिकॉज वी हैड द मेटल ऑफ कॉपर, वी हैव डेवलप्ड और इन्वेंटेड कॉपर ओवर हियर, वी डिड नॉट इन्वेंट कॉपर, वी डिस्कवर कॉपर, ठीक है, इस एज में हम कॉपर की डिस्कवरी करते हैं, ठीक है, वी डिस्कवर द यूज ऑफ कॉपर। सो चाल्कोलिथिक पीरियड इट मार्क्स द इमर्जेंस ऑफ द मेटल। इस पीरियड में क्या होता है? मेटल को डिस्कवर किया जाता है, मेटल इज डिस्कवर्ड इन दिस पीरियड, मेटल विद द स्टोन टूल्स, ठीक है, मेटल को स्टोन टूल्स के साथ मर्ज किया जाता है। एंड द फर्स्ट मेटल दैट वाज डिस्कवर्ड ओवर हियर वाज कॉपर। जो पहला मेटल डिस्कवर हुआ था इस एज में उसको हम क्या बोलते हैं? कॉपर। दैट इज व्हाई द एज इज नोन एज कॉपर स्टोन एज, ठीक है, द फर्स्ट मेटल वाज कॉपर। नाउ दे ऑल्सो हैड नॉलेज ऑफ ब्रोंज। ऐसा नहीं है इनको ब्रोंज की नॉलेज नहीं थी, they knew about bronze but bronze was, they did not know about its use, इसके यूज के बारे में नहीं पता था। the use is done in हरप्पन civilization। ब्रोंज का यूज कब होता है? हरप्पन सिविलाइजेशन में। दैट इज वाई हरप्पन सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज द ब्रोंज एज, इसीलिए हरप्पन सिविलाइजेशन को ब्रोंज एज भी बोलते हैं, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। सो इन द चाल्कोलिथिक एज वी न्यू अबाउट ब्रोंज बट वी डिड नॉट नो द यूज। हमें ब्रोंज तो पता था, यूज नहीं पता था। सो वी न्यू द यूज ऑफ कॉपर ओनली, हमें कॉपर का यूज पता था, सो इट इज नोन एज कॉपर स्टोन एज, ठीक है। टेक्नोलॉजिकली द चाल्कोलिथिक एज लार्जली अप्लाइज टू द सेटलमेंट्स ऑफ प्री हरप्पन पीपल। हरप्पन सिविलाइजेशन शुरू होता है उससे पहले प्री हरप्पन पीपल जो है, बिकॉज हरप्पन एज इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। First is the pre-Harappan age, then we have the mature Harappan age, then we have the late Harappan age, ठीक है। तो the pre-Harappan age it is also known as the Chalcolithic age, Chalcolithic age भी बोलते हैं pre-Harappan age को, that you have to remember, ठीक है। ये पॉइंट आपको स्पेशली याद रखना है, this point specially you have to remember, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? ओके, पॉइंट इज क्लियर। सो when we talk about the Chalcolithic age, let us understand the features of this age. Chalcolithic age also known as the copper stone age, इसको हम क्या बोलते हैं? copper stone age भी बोलते हैं। and write it down that it marked the emergence of, emergence means, emergence का मतलब क्या होता है? आना, ठीक है, discovery। it marks the emergence of the use of metal with stone tools। तो मेटल का यूज किसके साथ होता था? टूल्स में होता था। द मेटल वॉज यूज्ड इन द टूल मेकिंग एंड हियर द फर्स्ट मेटल is known as copper. We had the knowledge of bronze but we did not know how to use it. Knowledge तो थी, ज्ञान तो था कि there is a metal called bronze but use नहीं पता था. We did not know the use. For example, in Harappan civilization we knew about horses. Harappan civilization में हमें घोड़ों के बारे में पता था but we didn't know the use. The use was discovered in Vedic period. Later Vedic period में हमें पता चला घोड़ों का यूज कैसे करते हैं. ठीक है, in the wars the horses are used, but in Harappan period we know the horses, that there are animals called horses. We have found the bones also, but we did not know the use of horses. हमें भैया उनका यूज नहीं पता था कि कैसे घोड़ों को यूज किया जाता है. ठीक है, तो हमें हड्डियां मिली है, यानी कि घोड़े तो थे बट उनका यूज नहीं पता. Now another important point is that the people of Chalcolithic age, they were not acquainted with the use of burnt bricks. इनको bricks को तपाकर उनका यूज करना नहीं आता था. In the Harappan civilization we knew because the burnt bricks were used in house building. Harappan civilization में पक्के घर होते थे. ठीक है, घरों में burnt bricks यूज होते थे. Chalcolithic period में कच्चे घर होते थे. We had पक्का हाउस एंड कच्चा हाउस होता है ना, ऐसे कच्चे हाउसेस थे हमारे Chalcolithic पीरियड में, बिकॉज वी वर नॉट यूजिंग बर्न्ट ब्रिक्स. वी डिड नॉट नो हाउ टू यूज बर्न्ट ब्रिक्स. ठीक है, एंड पीपल वर लिविंग इन थैच्ड हाउसेस. लोग क्या करते थे, झाड़ फूक जो भी होता था, जो पत्ते हुआ करते थे, थैच्ड जो भी भूसा होता था उससे छत बनाया करते थे घर का. देयर वर थैच्ड हाउसेस. ठीक है, सो देयर वर नो पक्का हाउसेस इन Chalcolithic पीरियड. वी हैड कच्चा हाउसेस, दैट इज द थैच्ड हाउसेस. ओके, पॉइंट क्लियर हो गया. एंड दे वर मेड ऑफ मड. मड से बना करते थे. दैट इज वाई द हाउसेस वर नॉट स्ट्रॉन्ग.
ठीक है, जो घर थे वो स्ट्रॉन्ग नहीं थे, एंड दे ऑल्सो डिड नॉट न्यू हाउ टू राइट, इनको लिखना भी नहीं आता था. People in the later part of Harappan civilization, they knew how to write, but they also wrote in codified language. अब जो हरप्पन सिविलाइजेशन का एंड का पीरियड आया उसमें लोगों को पता था लिखना कैसे है, बट वो भी कैसे लिखते थे, कोड्स में लिखा करते थे, पता नहीं किस तरीके के सिंबल्स बनाया करते थे, चाइनीज सिंबल्स, राइट. चाइनीज सिंबल्स नहीं, ज्योमेट्रिकल सिंबल्स थे, बट दैट वाज देयर कोड लैंग्वेज, वो उनकी लैंग्वेज थी. वी आर स्टिल डिकोडिफाइंग दैट लैंग्वेज. ओके, तो एक तरीके का ज्योमेट्रिकल सिंबल हुआ करता था, दे हैड ज्योमेट्रिकल सिंबल्स लाइक दिस. तो वो अभी हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. इट इज स्टिल नॉट डिकोडेड, वी आर ट्राइंग टू डिकोड इट, ठीक है. पॉइंट क्लियर. बट चालकोलिथिक पीपल डिड नॉट नो हाउ टू राइट, उनको बोलना आता होगा बट लिखना तो बिल्कुल नहीं आता था, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी एविडेंस इन रिटन ऑफ द चालकोलिथिक पीरियड. सो बेसिकली आफ्टर चालकोलिथिक पीरियड स्टार्ट्स द मेन हरप्पन एज. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द चालकोलिथिक, द क्वेश्चन कैन कम, चालकोलिथिक पीरियड एंड हरप्पन पीरियड, इन दोनों पीरियड के बीच का डिफरेंस क्या है? दिस इज द क्वेश्चन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चालकोलिथिक पीरियड एंड हरप्पन पीरियड? फर्स्ट इज दैट इट वाज रूरल. प्राइमरीली चालकोलिथिक पीरियड जो था वो रूरल था, बिकॉज वी हैड थैच्ड हाउसेस मेड अप ऑफ मड, ठीक है, तो बहुत रूरल सिविलाइजेशन थी. बट हरप्पन सिविलाइजेशन इज अर्बन. वाई? बिकॉज वी हैव सिटीज इन हरप्पन सिविलाइजेशन, वी आर ट्रेडिंग विद अदर सिविलाइजेशंस. हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड कर रहे हैं, वी आर ट्रेडिंग विद द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, राइट, चाइनीज सिविलाइजेशन. प्लस वी हैड एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम, हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम भी था, तो इट वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन. नाउ हियर द पीपल यूज्ड कॉपर, यहाँ पर लोगों ने कॉपर यूज किया. बट हरप्पन पीपल हरप्पन पीपल यूज्ड ब्रोंज, बिकॉज इट इज नोन एज ब्रोंज एज सिविलाइजेशन. हरप्पन सिविलाइजेशन को और क्या बोलते हैं? ब्रोंज एज सिविलाइजेशन. नाउ चालकोलिथिक पीपल, राइट इट डाउन, they lived near the hilly land or river, ठीक है. but when we talk about Harappan civilization, ठीक है, तो they had attained, write it down, they had attained urbanization. इन्होंने तो urbanization attain कर लिया था on the basis of produce from the flood plains, because they were living in Indus, near the Indus river, ठीक है. कहाँ पर रह रहे थे ये? Indus river के आसपास रह रहे थे. So they were living near the Indus valley and they attained urbanization on the basis of produce, that means agricultural activities, produce from the agricultural activities from the flood plains in Indus valley. You all know that the land which is near the rivers, those are very fertile in nature. जो भी ज़मीनें नदियों के आसपास होती हैं बहुत fertile होती हैं, ठीक है. So that is why the agricultural activity progresses in those fertile lands. So they had attained urbanization, they were settled near the Indus valley, so their agricultural activities were flourishing, ठीक है. इनकी जो agricultural activity है वो flourish कर रही थी. Plus they were using Indus rivers for trading also with the other civilization. River route को ये use कर रहे थे trading के लिए, ठीक है. So there were trading also being done near using the Indus rivers. So they were flourishing, they had already attained urbanization. Point clear हो गया यहाँ तक सभी को? तो जल्दी से बताओ. Now read the question carefully. Which was the first metal used by man? Bronze, silver, iron or copper? You have 30 seconds time to answer this question. आप लोगों के पास 30 सेकंड का टाइम है, फटाफट से क्वेश्चन को आंसर करें. You have 30 seconds time. 20 seconds are left. 20 सेकंड बचे हैं. ओके, 15 सेकेंड्स आर लेफ्ट. 15 सेकेंड बचे हैं. वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करो. अभी पढ़ा है हमने जस्ट, बहुत इजी है. तो लेट्स हैव अ लुक एट द लीडर बोर्ड. लीडर बोर्ड देखते हैं. गरिमा, ओम, धनश्री, सुचेता, दिनेश, नवीन, अनूप, शांतनु, राजेंद्र, अंबर. वेरी गुड. करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, इट इज डी, copper. Correct answer is question का D, that is copper. Okay, so D is the correct answer. Which was the first metal? Copper. They, in the Chalcolithic period, they knew about copper, but they also knew about bronze, but this was not discovered by everybody. ठीक है, copper was the metal that they knew. ठीक है, point clear हो गया. Now next question. So read the question carefully. With which period do we associate the megaliths
Pleistocene era, Mesolithic period, Paleolithic period और none of the above. You have 15 seconds time to answer the question. 15 सेकंड का टाइम है, फटाफट से आंसर करें क्वेश्चन को. Very easy question. 8 seconds are left. 8 seconds बचे हैं. 5 seconds are left. Here the correct answer is Mesolithic period. ठीक है, मेगालिथ्स के बारे में पढ़ा था हमने. ठीक है, तो आई होप यू एंजॉय टुडेज क्लास. उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, एंजॉय की हो सबने, सब बातें क्लियर हो गई हो. आर देयर एनी डाउट्स? यस, द नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन द सेम टाइम. ठीक है, सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ठीक है, okay, so on this note we are wrapping up the session. Thank you everyone for participating in the class. Thank you very much. Good night everyone.